السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم الاسلام کے دوسرے حصے کا دوسرا شعبہ، جس کا مشہور نام ہے تعلیم الارکان یا اسلامی اعمال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: اسلامی اعمال سے کیا مطلب ہے؟ جواب: جن 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے، ان میں پہلی بات کو ایمان کہتے ہیں، اور اس کا بیان پہلے شعبے یعنی کھنڈ میں اسلامی عقیدوں کے نام سے پڑھ چکے ہو۔ باقی 4 چیزوں یعنی نماز، زکوٰۃ، رمضان کا روزہ، حج بیت اللہ کو اسلامی اعمال کہتے ہیں۔ اس دوسرے حصے میں نماز کا بیان ہے۔ نماز۔ سوال: نماز کسے کہتے ہیں؟ جواب: نماز خدا تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے پیغمبر علیہ السلام نے بندوں کو سکھایا ہے۔ سوال: نماز پڑھنے سے پہلے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ جواب: نماز پڑھنے سے پہلے 7 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ان چیزوں کو نماز کی شرطیں اور فرض کہتے ہیں۔ سوال: وہ 7 چیزیں جو نماز سے پہلے ضروری ہے کیا ہے؟ جواب: پہلا، بدن کا پاک ہونا۔ دوسرا، کپڑوں کا پاک ہونا۔ تیسرا، جگہ کا پاک ہونا جہاں پہ نماز پڑھنی ہے۔ چوتھا، سطر کا چھپانا۔ پانچواں، نماز کا وقت ہونا۔ چھٹا، قبلے کی طرف منہ کرنا۔ اور ساتواں، نیت کرنا۔ نماز کی پہلی شرط کا بیان۔ سوال: بدن کے پاک ہونے سے کیا مطلب ہے؟ جواب: بدن کے پاک ہونے سے یہ مطلب ہے کہ بدن پر کسی طرح کی نجاست یعنی ناپاکی نہ ہو۔ سوال: نجاست کی کتنے قسمیں یعنی پرکار ہیں؟ جواب: نجاست یعنی ناپاکی کی 2 قسمیں یعنی پرکار ہے، ایک حقیقی، دوسری حکمی۔ سوال: نجاست حقیقی کسے کہتے ہیں؟ جواب: وہ دکھائی دینے والی ناپاکی جو دیکھنے میں آ سکے نجاست حقیقیہ کہلاتی ہے، جیسے پیشاب، پاخانہ، خون، شراب۔ سوال: نجاست حکمیہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: وہ ناپاکی جو شریعت کے حکم سے ثابت ہو مگر دیکھنے میں نہ آ سکے نجاست حکمیہ کہلاتی ہے، جیسے بے وضو ہونا، غسل کی ضرورت ہونا۔ سوال: نماز کے لیے کس نجاست سے بدن کا پاک ہونا شرط ہے؟ جواب: دونوں طرح کی ناپاکی سے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے۔ سوال: نجاست حکمیہ کی کتنے قسمیں ہیں؟ جواب: 2 قسمیں ہیں، ایک چھوٹی نجاست حکمیہ، اسے حدث اصغر کہتے ہیں، اور دوسری بڑی نجاست حکمیہ، اسے حدث اکبر اور جنابت کہتے ہیں۔ سوال: چھوٹی نجاست حکمیہ سے بدن پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب: چھوٹی نجاست حکمیہ سے بدن وضو کرنے سے پاک ہو جاتا ہے۔ وضو کا بیان۔ سوال: وضو کسے کہتے ہیں؟ جواب: وضو اسے کہتے ہیں کہ آدمی جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو صاف برتن میں پاک پانی لے کر پہلے گٹوں تک ہاتھ دھوئے، پھر 3 بار کلی کرے، مسواک کرے، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالے اور ناک صاف کرے، پھر 3 بار منہ دھوئے، پھر کوہنیوں تک دونوں ہاتھ دھوئے، پھر سر اور کانوں کا مسح کرے، پھر دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئیں۔ وضو کرنے کا طریقہ تعلیم الاسلام کے پہلے حصے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ سوال: وضو میں کیا یہ سب باتیں ضروری ہے؟ جواب: وضو میں کچھ باتیں ضروری ہے جن کے چھوٹ جانے سے وضو نہیں ہوتا، انہیں فرض کہتے ہیں، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جن کے چھوٹ جانے سے وضو ہو جاتا ہے مگر ادھورا ہوتا ہے، انہیں سنت کہتے ہیں، اور کچھ باتیں ایسی ہیں کہ ان کے کرنے سے ثواب زیادہ ہوتا ہے اور چھوٹ جانے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، انہیں مستحب کہتے ہیں۔ سوال: وضو میں کتنے فرض ہیں؟ جواب: وضو میں 4 فرض ہیں۔ پہلا، ماتھے کے بالوں سے ٹھوری کے نیچے تک اور ایک کان سے دوسرے کان تک منہ دھونا۔ دوسرا نمبر، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا۔ تیسرا نمبر، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا نمبر، دونوں پاؤں گٹوں سمیت دھونا۔ سوال: وضو میں کتنی سنتیں ہیں؟ جواب: وضو میں 13 سنتیں ہیں۔ پہلا، نیت کرنا۔ دوسرا، بسم اللہ پڑھنا۔ تیسرا، پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا۔ چوتھا، مسواک کرنا۔ پانچواں، 3 بار کلی کرنا۔ چھٹا، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا۔ ساتواں، داڑھی کا کھلال کرنا۔ آٹھواں، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا کھلال کرنا۔ نواں، ہر حصے کو 3 بار دھونا۔ 10واں، 1 بار سارے سر کا مسح کرنا یعنی بھیگا ہوا ہاتھ پھیرنا۔ 11واں، دونوں کانوں کا مسح کرنا۔ 12واں، ترتیب سے وضو کرنا۔ 13واں، اس طرح وضو کرنا کہ ایک حصہ سوکھنے نہ پائے کہ دوسرا حصہ دھو لے۔ سوال: وضو میں مستحب کتنے ہیں؟ جواب: وضو میں 5 چیزیں مستحب ہیں۔ پہلا، دائیں طرف سے شروع کرنا، کچھ عالموں نے اسے سنتوں میں گنا ہے اور یہی زیادہ ٹھیک ہے۔ دوسرا، گردن کا مسح کرنا۔ تیسرا، وضو کے کام کو خود کرنا، دوسرے سے مدد نہ لینا۔ چوتھا، قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا۔ پانچواں، پاک اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا۔
सवाल, वुजू में कितने चीजें मकरूह हैं? जवाब, वुजू में 4 चीजें मकरूह हैं। पहला, नापाक जगह पर वुजू करना। दूसरा, सीधे हाथ से नाक साफ करना। तीसरा, वुजू करने में दुनिया की बातें करना। चौथा, सुन्नत के खिलाफ वुजू करना। सवाल, कितनी चीजों से वुजू टूट जाता है? जवाब, 8 चीजों से वुजू टूट जाता है। उन्हें वुजू के नवाकिज कहते हैं। पहला, पाखाना पेशाब करना या इन दोनों रास्तों से किसी और चीज का निकलना। दूसरा, रिह यानी हवा का पीछे से निकलना। तीसरा, बदन के किसी हिस्से से खून या पीप का निकलकर बह जाना। चौथा, मुंह भर के यानी उल्टी करना। पांचवा, लेट कर या सहारा लगाकर सो जाना। छठा, बीमारी या किसी और वजह से बेहोश हो जाना। सातवां, मजनू यानी दीवाना हो जाना। आठवां, नमाज में खिलखिलाकर हंसना। इसके बाद आता है गुस्ल का बयान। सवाल, बरी नजासत हुक्मिया यानी हद से अकबर और जनाबत से बदन पाक करने का क्या तरीका है? जवाब, हद से अकबर या जनाबत से बदन गुस्ल करने से पाक हो जाता है। सवाल, गुस्ल किसे कहते हैं? जवाब, गुस्ल के माने हैं नहाना, मगर नहाने का शरीयत में एक खास तरीका है। सवाल, गुस्ल का तरीका क्या है? जवाब, गुस्ल का तरीका यह है कि पहले दोनों हाथ गट्टों तक धोएं, फिर इस्तिंजा करे और बदन से हकीकी नजासत ढो डाले, फिर वुजू करे, फिर सारे बदन को थोड़ा पानी डालकर हाथ से मले, फिर सारे बदन पर 3 बार पानी बहाए, कुल्ली करे, नाक में पानी डाले। सवाल, गुस्ल में फर्ज कितने हैं? जवाब, गुस्ल में 3 फर्ज हैं। पहला, कुल्ली करना। दूसरा, नाक में पानी डालना। तीसरा, सारे बदन पर पानी बहाना। सवाल, गुस्ल में सुन्नतें कितनी हैं? जवाब, गुस्ल में 5 सुन्नतें हैं। पहला, दोनों हाथ गट्टों तक धोना। दूसरा, इस्तिंजा करना और जिस जगह बदन पर नापाकी लगी हो उसे धोना। तीसरा, नापाकी दूर करने की नीयत करना। चौथा, पहले वुजू कर लेना। पांचवा, सारे बदन पर 3 बार पानी बहाना। मोजों पर मसाह करने का बयान। सवाल, किस तरह के मोजों पर मसाह करना जायज है? जवाब, 3 तरह के मोजों पर मसाह जायज है। पहला, चमड़े के मोजे जिनसे पांव गट्टों तक छुपे रहें। दूसरा, वे ऊनी सूती मोजे जिनमें चमड़े का तला लगा हुआ हो। तीसरा, वे ऊनी सूती मोजे जो इतने गाढ़े और मोटे हों कि खाली मोजे पहनकर 3-4 मील का रास्ता चलने से न फटे। सवाल, मोजों पर कब मसाह जायज है? जवाब, जब वुजू करके या पांव धोकर मोजे पहने हो, फिर वुजू टूटने की हालत में मोजे पहने हुए हो। सवाल, एक बार के पहने हुए मोजों पर कितने दिनों तक मसाह जायज है? जवाब, अगर आदमी अपने घर या रहने की जगह हो तो 1 दिन और 1 रात मोजों पर मसाह करे और सफर में हो तो 3 दिन 3 रात तक मसाह जायज है। सवाल, मोजों पर किस तरह मसाह करे? जवाब, ऊपर की तरफ करना चाहिए, तलवों की तरफ या एड़ी की तरफ करने से मसाह नहीं होता। सवाल, वुजू और गुस्ल दोनों में मोजों पर मसाह जायज है या नहीं? जवाब, वुजू में मोजों का मसाह जायज है, गुस्ल में नहीं। सवाल, मसाह किस तरह करे? जवाब, हाथ की उंगलियां पानी से भिगोकर 3 उंगलियां पांव के पंजे पर रखकर ऊपर की तरफ खींचे। उंगलियां पूरी रखें, सिर्फ उनके सिरे रखना काफी नहीं। सवाल, फटे हुए मोजों पर मसाह जायज है या नहीं? जवाब, अगर मोजा इतना फट गया कि पांव की 3 छोटी उंगलियों के बराबर पांव खुल गया या चलने में खुल जाता है तो उस पर मसाह जायज नहीं, और उससे कम फटा हो तो जायज है। जबीरह पर मसाह करने का बयान। सवाल, जबीरह किसे कहते हैं? जवाब, जबीरह वह लकड़ी है जो टूटी हड्डी ठीक करने के लिए बांधी जाती है, मगर यहाँ जबीरह से मतलब उस लकड़ी या जख्म की पट्टी या मरहम के फाये से है। सवाल, इस लकड़ी या पट्टी या फाया पर मसाह करने का क्या हुक्म है? जवाब, अगर इस लकड़ी या पट्टी का खोलना और फाये का उखाड़ना नुकसान पहुंचाए या ज्यादा तकलीफ होती हो तो इस लकड़ी और पट्टी और फाये पर मसाह कर लेना जायज है। सवाल, कितनी पट्टी पर मसाह करे? जवाब, सारी पट्टी पर मसाह करना चाहिए, चाहे उसके नीचे जख्म हो या न हो। सवाल, अगर पट्टी खोलने से नुकसान और तकलीफ न हो तो क्या हुक्म है? जवाब, अगर जख्म को पानी से धोना नुकसान न पहुंचाए तो धोना जरूरी है, और पानी से धोना नुकसान पहुंचाए लेकिन मसाह से नुकसान न हो तो जख्म पर मसाह करना वाजिब है, और जब जख्म पर मसाह करना भी नुकसान पहुंचाए उस वक्त पट्टी या फाया पर मसाह करना जायज है। नजासत हकीकिया का बयान। सवाल, नजासत हकीकिया की कितने किस्में हैं? जवाब, नजासत हकीकिया की 2 किस्में हैं।
हैं, एक नजासत गलीजा, दूसरी नजासत खफीफा। सवाल, नजासत गलीजा और नजासत खफीफा किसे कहते हैं? जवाब, जो नापाकी सख्त हो उसे नजासत गलीजा कहते हैं और जो नजासत हल्की हो उसे नजासत खफीफा कहते हैं। सवाल, कितनी चीजें नजासत गलीजा हैं? जवाब, आदमी का पेशाब, पाखाना और जानवरों का पाखाना और हराम जानवरों का पेशाब और आदमी और जानवरों का बहता हुआ खून और शराब और मुर्गी और बत्तख की बीट नजासत गलीजा है। सवाल, नजासत खफीफा क्या क्या चीजें हैं? जवाब, हलाल जानवरों का पेशाब और हराम परिंदों की बीट नजासत खफीफा है। सवाल, नजासत गलीजा कितने मुआफ है? जवाब, नजासत गलीजा अगर गाढ़े बदन वाली है जैसे पाखाना तो वह 3.5 माशा वजन तक माफ है। अगर पतली हो जैसे शराब, पेशाब तो वह 1 अंग्रेजी चांदी के रुपए के फैलाव के बराबर माफ है। माफ होने का मतलब यह है कि अगर इतनी नापाकी बदन या कपड़े पर लगी हो और नमाज पढ़ ले तो नमाज हो जाएगी, मगर मकरूह होगी। जानबूझकर इतनी नजासत भी लगी रखना जायज नहीं। सवाल, नजासत खफीफा कितनी माफ है? जवाब, 1/4 कपड़े या बदन के 1/4 हिस्से से कम हो तो माफ है। सवाल, नजासत हकीकिया से कपड़ा या बदन किस तरह पाक किया जाए? जवाब, नजासत हकीकिया चाहे गाढ़े हो या हल्की यानी पतली, कपड़े पर हो या बदन पर, पानी से 3 बार धो लेने से पाक हो जाती है। कपड़े को 3 बार निचोड़ना भी जरूरी है। सवाल, पानी के सिवा किसी और चीज से भी पाक हो सकती है या नहीं? जवाब, हाँ, जो चीजें पतली और बहने वाली है जैसे सिरका या तरबूज का पानी, इनके धोने से भी नजासत हकीकिया पाक हो जाती है। इस्तिंजे का बयान। सवाल, इस्तिंजा किसे कहते हैं? जवाब, पाखाना पेशाब करने के बाद जो नापाकी बदन पर लगी है उसके पाक करने को इस्तिंजा कहते हैं। सवाल, पेशाब के बाद इस्तिंजा करने का क्या तरीका है? जवाब, पेशाब करने के बाद मिट्टी के पाक ढेले से पेशाब को सुखाना चाहिए, इसके बाद पानी से धो डालना चाहिए। सवाल, पखाने के बाद इस्तिंजे का क्या तरीका है? जवाब, पखाने के बाद मिट्टी के 3 या 5 ढेलों से पखाने की जगह को साफ करे, फिर पानी से धो डाले। सवाल, इस्तिंजा करना कैसा है? अगर पखाना या पेशाब अपनी जगह से बढ़कर इधर उधर न लगा हो तो इस्तिंजा करना मुस्तहब है, और अगर नजासत इधर उधर लग गई हो मगर 1 दिरहम के बराबर या उससे कम लगी हो तो इस्तिंजा करना सुन्नत है, और अगर 1 दिरहम से ज्यादा लगी हो तो इस्तिंजा करना फर्ज है। सवाल, इस्तिंजा किन चीजों से करना चाहिए? जवाब, मिट्टी के पाक ढेलों से या पत्थर से। सवाल, इस्तिंजा किन चीजों से मकरूह है? जवाब, हड्डी, लीद, गोबर और खाने की चीजों, कोयले और कपड़े और कागज से इस्तिंजा करना मकरूह है। सवाल, इस्तिंजा किस हाथ से करना चाहिए? जवाब, बाएं हाथ से करना चाहिए, दाएं हाथ से इस्तिंजा करना मकरूह है। पानी का बयान। किन पानियों से वुजू करना जायज है? जवाब, बारिश का पानी, चश्मे या कुएं का पानी, नदी या समुद्र का पानी, पिघली हुई बर्फ या ओलों का पानी, बड़े तालाब या बड़े हौज का पानी, इन सब पानियों से वुजू और गुस्ल करना जायज है। सवाल, किन पानियों से वुजू करना जायज नहीं? जवाब, फल और पेड़ का निचोड़ा हुआ पानी, शोरबा, वह पानी जिसका रंग, बू, मजा किसी पाक चीज के मिल जाने की वजह से बदल गया हो, ऐसा पानी जो थोड़ा हो और उसमें कोई नापाक चीज गिर गई हो या कोई जानवर गिरकर मर गया हो, वह पानी जिससे वुजू या गुस्ल किया गया हो, वह पानी जिस पर नापाकी का असर ज्यादा हो, हराम जानवरों का जूठा पानी, सौंफ, गुलाब या और किसी दवा का खोचा हुआ अर्क। सवाल, जिस पानी से वुजू या गुस्ल किया गया हो उसे क्या कहते हैं? जवाब, ऐसे पानी को मुस्तामल यानी इस्तेमाल किया गया पानी कहते हैं जो खुद पाक है मगर उससे वुजू या गुस्ल करना जायज नहीं। सवाल, किन जानवरों का जूठा पानी नापाक है? जवाब, कुत्ते, सूअर और शिकारी चौपाए यानी जानवरों का जूठा पानी नापाक है। इसी तरह बिल्ली जो चूहा या कोई और जानवर खाकर फौरन पानी पी ले, इसका जूठा भी नापाक है। इसके अलावा जिस आदमी ने शराब पी और फौरन पानी पी लिया, इसका जूठा भी नापाक है। सवाल, किन जानवरों का जूठा पानी मकरूह है? जवाब, बिल्ली अगर फौरन चूहा न खाया हो, दूसरा चूहा, तीसरा छिपकली,
चौथा बाहर फिरने वाली मुर्गी, पांचवा नापाकी खाने वाली गाय, छठा भैंस, सातवां कौआ, चील, शिकरा और सारे हराम जानवरों का जूठा मकरूह है। सवाल, किन जानवरों का जूठा पानी पाक है? जवाब, आदमी और हलाल जानवरों का जूठा पानी पाक है, जैसे गाय, बकरी, कबूतर, फाख्ता, घोड़ा। सवाल, कौन सा पानी नजासत के गिरने से नापाक हो जाता है? जवाब, सिवाय दो पानियों के सब पानी नजासत के गिरने से नापाक हो जाते हैं। वे दो पानी ये हैं, पहला नदी या दरिया का बहता हुआ पानी, दूसरा ठहरा हुआ ज्यादा पानी जैसे बड़े तालाब या बड़े हौज का पानी। सवाल, ठहरे हुए ज्यादा पानी की क्या मिकदार है? जवाब, जो ठहरा हुआ पानी नंबरी गज से 5.5 गज लंबा और 5.5 गज चौड़ा हो वह ज्यादा पानी है। जो हौज या तालाब की इतना बड़ा हो वह बड़ा हौज और बड़ा तालाब समझा जाएगा। सवाल, नजासत गिरने के सिवा और किस चीज से थोड़ा पानी नापाक हो जाता है? जवाब, अगर पानी में कोई ऐसा जानवर गिरकर मर जाए जिसमें बहता हुआ खून होता है तो पानी नापाक हो जाता है, जैसे चिड़िया, मुर्गी, कबूतर, बिल्ली, चूहा। सवाल, बड़े तालाब या हौज का पानी कब नापाक होता है? जवाब, जब इसमें नजासत का मजा या रंग या बू जाहिर हो जाए। सवाल, किन जानवरों के पानी में मर जाने से पानी नापाक नहीं होता? जवाब, जो जानवर पानी में पैदा होते और रहते हैं जैसे मछली, मेढक और वे जानवर जिनमें बहता हुआ खून नहीं है जैसे मक्खी, मच्छर, भीर, छिपकली, चींटी, इनके मरने से पानी नापाक नहीं होता। कुएं का बयान। सवाल, कुआं किन चीजों से नापाक होता है? जवाब, अगर नजासत गलीजा या खफीफा कुएं में गिर जाए या कोई बहते हुए खून वाला जानवर कुएं में गिरकर मर जाए तो कुआं नापाक हो जाता है। सवाल, अगर कुएं में कोई जानवर गिरकर जिंदा निकल आए तो कुआं पाक रहेगा या नापाक हो जाएगा? जवाब, अगर ऐसा जानवर गिरे कि उसका जूठा नापाक है या वह जानवर गिरे जिसके बदन पर नजासत लगी थी तो कुआं नापाक हो जाएगा। लेकिन वह हलाल या हराम जानवर जिनका जूठा नापाक नहीं और इनके बदन पर नजासत भी न हो अगर गिरे और जिंदा निकल आए तो जब तक उनके पेशाब या पाखाना कर देने यकीन न हो जाए कुआं नापाक न होगा। सवाल, कुआं जब नापाक हो जाए तो पाक करने का क्या तरीका है? जवाब, कुएं के पाक करने के 5 तरीके हैं। पहला, जब कुएं में नजासत गिर जाए तो सारा पानी निकालने से पाक हो जाएगा। दूसरा, जब आदमी या सूअर या कुत्ता या बकरी या 2 बिल्लियां या इससे बड़ा कोई और जानवर गिरकर मर जाए तो सारा पानी निकालना पड़ेगा। तीसरा, जब कोई बहते हुए खून वाला जानवर गिरकर फूल गया या फट गया तो सारा पानी निकालना होगा, चाहे वह जानवर छोटा हो या बड़ा। चौथा, जब कबूतर या मुर्गी या बिल्ली या इतना ही बड़ा कोई जानवर गिरकर मर गया लेकिन फूला नहीं तो 40 डोल निकालने पड़ेंगे। पांचवा, अगर चूहा, चिड़िया या इतना ही बड़ा कोई और जानवर गिरकर मर गया तो 20 डोल निकालने पड़ेंगे। 20 की जगह 30 और 40 की जगह 60 डोल निकालना मुस्तहब है। सवाल, अगर मरा हुआ जानवर कुएं में गिर जाए तो उसका क्या हुक्म है? जवाब, मरे हुए जानवर के गिरने का वही हुक्म है जो कुएं में गिरकर मरने का बयान हुआ। जैसे बकरी मरी हुई गिरे तो सारा पानी निकाला जाए और बिल्ली मरी हुई गिरे तो 40 या 60 डोल और चूहा मरा हुआ गिरे तो 20 या 30 डोल निकाले जाएं। सवाल, अगर फूला हुआ या फटा हुआ जानवर गिर जाए तो क्या हुक्म है? जवाब, सारा पानी निकालना होगा जैसे कि कुएं में गिरकर मरता और फूलता और फट जाता। सवाल, अगर कुएं में से मरा हुआ जानवर निकले और मालूम न हो कि कब गिरा है तो क्या हुक्म है? जवाब, जिस वक्त से देखा जाए उसी वक्त से कुआं नापाक समझा जाएगा। सवाल, डोल से कितने बड़े डोल से मतलब है? जवाब, जिस कुएं पर जो डोल पड़ा रहता है वह ठीक है। सवाल, जितने डोल निकालने हैं एक ही बार निकालने चाहिए या कई बार करके निकालना जायज है? जवाब, कई बार करके निकालना भी जायज है। जैसे 60 डोल निकालने हैं, 20 सुबह को निकाले, 20 दोपहर को और 20 शाम को, तो यह भी जायज है। सवाल, जिस डोल रस्सी से नापाक कुएं का पानी निकाला जाए वह पाक है या नापाक? जवाब, जब इतना पानी निकाल डाला जितना निकालना चाहिए था तो कुआं, डोल और रस्सी सब पाक हो जाते हैं। तालीमुल इस्लाम का दूसरा हिस्सा मुकम्मल हुआ। तालीमुल इस्लाम के तीसरे हिस्से को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हम सबको इल्म सीखने की और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।